बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसी राइटिंग, ये प्रेसिस क्या है और प्रेसी राइटिंग क्या है? प्रेसी एक्चुअली टू समराइज, टू ब्रीफ the piece of writing that we have. Pressy writing mean the skill of summarizing the passage, the skill of paraphrasing the items that we want to rewrite. Or first of all, let's move toward the definitions on what is a pressy and what is a pressy writing. The word pressy is derived from the French word that means summary and precise writing, means the art of summarizing. Actually, pressy writing is one of the most useful skills you can acquire for your work, both as a student as well as a professional. It is necessary for you have have a pressy skills in your professional career because you have a lot of things to write, and it is not necessary to write all the detail of the things that you want to describe in your project. It is necessary for you to summarize, to be precise, to precise over the words that you want to put. Precise writing involves summarizing a document to extract the maximum amount of the information, then conveying this information to a reader in a minimum words. Let's suppose that you have five passage, and let's suppose that you have three passage in your front, and you want to make a pressy of that. It is necessary for you to make these three passages into one whole. It's mean the pressy is necessary to be a one third of the original passage or the original passage. जो प्रेसी है वो 1/3 होना बहुत ज़रूरी है। जो प्रेसी का जो हकीकी वर्ड्स हैं उसका तीसरा हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। Definition: Pressy, a pressy is a clear, compact, logical summary of a passage. It preserves only the essential or the important ideas of the original passage. ओरिजिनल पैसेज का जो मेन पॉइंट होता है या ओरिजिनलिटी जो होती है उसके जो चीदा चीदा पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को डिस्कस करना प्रेसी कहलाता है। कहते जी कि व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ प्रेसी और व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रेसी, कि जब प्रेसी लिखते हैं तो वी हैव टू कीप इन माइंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट मेक योर प्रेसी अ गुड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बातों को कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी प्रेसी को अच्छा बनाती हैं। उनमें से फर्स्ट वन जो है वो क्लैरिटी है। क्लैरिटी मीन्स दैट योर मैसेज मस्ट बी इन अ क्लियर वे। इन अ क्लियर वे, क्लैरिटी मीन्स गेटिंग योर मैसेज, getting your message across so that the receiver can understand what the writer is trying to convey. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने बात लिखी है वो रीडर को समझ ही ना आए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो आप समझाना चाह रहे हैं वो उसे तब भी समझ ना आए। ज़रूरी है कि आप जो राइटिंग कर रहे हैं या आप जो बताना चाह रहे हैं, योर वर्ड्स मस्ट बी इन अ क्लियर सेंस। आप वहाँ पर एम्बिगुअस वर्ड ना लिखें, और आपकी जो राइटिंग है वो क्लियर कट मैसेज देती हो। इट इज़ द बेसिक एंड एसेंशियल नीड ऑफ योर पैसेज। दिस आइडिया और द आइडियाज शुड बी क्लियर and understandable. What do you want to express in your writing? It is clearly mentioned. आप बताना क्या चाह रहे हैं या हाईलाइट क्या करना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। तो फर्स्ट पॉइंट of press writing is the clarity. The writer can achieve clarity by using simple language and simple structure of the sentence. If your pressy is not understandable to the reader, it will lose its importance and meanings for the reader. आप कह लें कि अगर आप यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात नहीं करते, आप एक सादा लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते जो रीडर्स को समझ ना आए, तो फिर आप समझ लें कि आपने उसकी खूबसूरती को गुम कर दिया, आपने उसकी क्लैरिटी को, उसकी अंडरस्टैंडिंग के पर्पस को आपने लॉस कर दिया। At second level, you have to make your pressy correct. अब ये correctness जो है ये in which sense we can say that what is the correctness? Your writing must be error free. Mistakes in your writing always irritate the readers. आपकी गलतियां जो हैं हमेशा रीडर को परेशान करती हैं. Of course, mistakes are never intentional.
हम इरादतन तो नहीं करते, इवन सो देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर देम, फिर भी इनके लिए कोई आप कह लें कि कोई माजरत नहीं होती. At the time of writing or composing a précis, the writer must ensure that the facts and the figures are correct. Structure of the sentence and the spellings of the words must be correct, because a single mistake in structure and spelling may spoil the passage. We may consider the mistakes under the following headings. करेक्ट आपको कौन सी चीज़ें करनी है, योर स्पेलिंग जो है वो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, आपकी डेट्स फिगर्स वो करेक्ट होनी चाहिए, आपकी पंक्चुएशन जो है वो करेक्ट होनी चाहिए, आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर ग्रामर ये करेक्ट होनी चाहिए. इट्स मीन देयर इज नो रूम फॉर द एरर्स and the mistakes, just like misspelling words, mistakes in figure and dates, mistakes in punctuations, mistakes of grammar and structures. It's mean there is no room for them. यहाँ पर इनके लिए कोई जगह नहीं है. आपके स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, आपकी डेट्स एंड फिगर्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए, आपकी पंक्चुएशन बिल्कुल ठीक होने चाहिए, आपका ग्रामर सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए. If you put these 4 things in a correct order, definitely your précis shows the correctness in the sentences or in the writing. After that, objectivity. What is the objectivity? दो चीजें होती हैं, एक objectivity होती है और एक subjectivity होती है. Subjectivity होती है जहां पर हम अपनी जात को फोकस रखते हैं. ऑब्जेक्टिविटी होती है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को फोकस रखते हैं. ऑब्जेक्ट मतलब कि आप कह लें कि जो मैसेज है अगर हम उस पर फोकस करते हैं तो इट्स मीन वी आर ट्राई टू कन्वे ऑब्जेक्टिविटी. इट्स मीन देयर शुडंट एनी बायसनेस, पर्सनल बायस नहीं होनी चाहिए. पर्सनल बायस क्या है कि आई वांट टू पुट एन एग्जांपल कि यहाँ पर कुछ लोग नून लीग की फेवर में होंगे, कुछ लोग पीटीआई की फेवर में होंगे, और अगर आपको एनालिसिस मिल जाए नून लीग के लोगों का कि नून लीग के ऊपर आप एक पैसेज लिख दें तो यकीन करें तो वो सारी की सारी पॉजिटिविटी उसकी बयान कर देंगे और अपना बायसनेस जाहिर करेंगे, क्योंकि वो उसकी तरफ उसे लाइक करता है तो उसकी कोई भी खामी बयान करने की कोशिश नहीं करेगा. इसी तरह अगर पीछे वालों से कहा जाए तो वो भी अपनी सारी की सारी खूबियां बयान करेंगे, खामियां बयान नहीं करेंगे. इसमें पर्सनल बायसनेस जाहिर करेंगे. इसके बरक्स देखें, अगर पीटीआई के बंदे को नून लीग के ऊपर लिखने का कह दिया जाए तो वो सारी की सारी उसकी खामियां लिखेगा, उसकी अच्छाइयाँ कम लिखेगा. इसी तरह नून लीग का पर्सन अगर पीटीआई के ऊपर बात करेगा तो वो भी उसकी खामियां बयान करेगा, उसकी अच्छाइयाँ बयान नहीं करेगा. तो अगर वो अपने पर्सनल व्यूज़ को साथ ऐड करता है, वो उसकी लॉजिक्स के बगैर उसकी खामियां या खूबियां बयान करता है तो उसने बायसनेस जाहिर की है. ऑब्जेक्टिविटी ये होगी कि अगर एक पर्सन किसी पार्टी को प्रेजेंट करना चाहता है तो वो उसे अच्छी तरह से उसका एनालिसिस करे, उसकी पॉजिटिव पॉइंट भी सामने रखे, उसके नेगेटिव पॉइंट भी सामने रखे. चाहे आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपके व्यूज, आपकी जजमेंट जो है, आपके जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, वहां पर आपकी फेवरिज्म या निपोटिज्म और निहिलिज्म शो नहीं होनी चाहिए. देयर इज नो रूम इन योर राइटिंग फॉर निपोटिज्म, निहिलिज्म एंड फेवरिटिज्म. आपकी राइटिंग के अंदर फेवरिटिज्म नहीं होनी चाहिए, निपोटिज्म और निहिलिज्म नहीं होनी चाहिए. आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रह के लिखें. व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्रेस, योर फोकस मस्ट बी एट दैट पॉइंट. आप हाईलाइट क्या करना चाहते हैं, आपका फोकस भी उसी के ऊपर होना चाहिए. आपकी जाती राय उसमें क्या है आप वो ऐड नहीं कर सकते. आप जो लॉजिक से नतीजा निकाल रहे हैं, जो आप कह लें कि फैक्ट एंड फिगर से जो नताइज को आप सामने लेके आ रहे हैं, अगर आप उन्हीं को पुट करते हैं तो फिर आपका जो पर्पस है, जो आपकी जो राइटिंग है वो ऑब्जेक्टिविटी जाहिर कर रही है. लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल ओपिनियन को वहाँ पर ऐड कर देते हैं, पर्सनल राय को वहाँ पर ऐड कर देते हैं, या पर्सनल फीलिंग्स को या पर्सनल एंगर को या एंग्विश को वहाँ पर पुट कर देते हैं, तो फिर आपने सब्जेक्टिविटी इख्तियार की है, फिर आपने ऑब्जेक्टिविटी इख्तियार नहीं की. तो लिहाजा इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू बी ऑब्जेक्टिव, to be an objective if we want to write a logic or logical or a factual point. अगर हम कोई लॉजिकल और फैक्चुअल पॉइंट लिखना चाहते हैं तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है. While making a précis, the writer should adopt an objective approach. He should not give and add his personal opinion and idea in the précis. A précis should be purely a summary of the original text without any addition. जो पैसेज दिया गया है उसी पैसेज के ऊपर आप बात करें, उसके अंदर इसके अलावा अपनी जाती राय ऐड ना करें. जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसी टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करें, उसी के अंदर से जो फैक्ट एंड फिगर्स फाइंड आउट हो रहे हैं वही ऐड करें. अपनी जाती राय को वहां पर ऐड करेंगे तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी लॉस हो जाएगी. देन है कोहेरेंस. कोहेरेंस बोलते हैं लिंक को, ब्रिज को, जो हम एक कनेक्शन बनाते हैं, एक ताल्लुक बनाते हैं. देयर इजंट एनी रूम फॉर द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द थिंग्स. इट इज नेसेसरी फॉर यू और इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू मेक अ लिंक, make a logical link between the ideas that you want to interpret. आपने जो आपकी जो थॉट्स हैं, आपके जो थिंकिंग हैं या जो आपके वर्ड्स हैं, must be correlated.
मस्ट बी इन अ कोहेरेंट, उनका वहां पर कोहेरेंट होना, ये सीक्वेंस का जाहिर करना, आपस में इंटरकनेक्टिविटी का जाहिर होना बहुत जरूरी है। कोहेरेंस मीन्स द लॉजिकल एंड द क्लियर इंटरकनेक्शन ऑफ आइडियाज इन अ रिटन पीस ऑफ वर्क। आपने जो लिखा है उन सब का आपस में एक टेक्निकली लिंक का बनना, एक लॉजिक्स का जाहिर करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बात जो है वो आपने पहले पीटीआई की कर दी है, फिर आप वहाँ पर नूली की बात कर दें, या आप कहने के पहले आपने पहले पाकिस्तान की बात कर दी है, उसके साथ ही आप सऊदी अरब की बात कर दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो पॉइंट है उस पॉइंट को अगर आपने सऊदी अरब के साथ लिंक करना है तो वहाँ पर देयर मस्ट बी सम सॉलिड रीजंस टू लिंक दैट, उन्हें लिंक करने के लिए कोई खास वजह होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोहेरेंस तभी बनेगा जब आप कोई लॉजिक्स, कोई फैक्ट्स को सामने रखते हुए कनेक्शन को बनाएंगे। The ideas which are presented in a précis must have a logical connection and they all should be interrelated. ऐसा लगना चाहिए कि ये सीरीज ऑफ इवेंट हैं और जो एक ही मेन पॉइंट की तरफ लीड कर रहे हैं। अगर आपकी बात इस तरह से नहीं होती, मेन पॉइंट की तरफ लीड नहीं करती, तो तब भी प्रॉब्लम है। इट्स मीन आपकी बात के अंदर कोहेरेंस नहीं है, आपकी बात के अंदर कोई इंटरकनेक्टिविटी नहीं है। In short, we may say that the ideas should be well knitted, well jotted, so that the writer may not be confused and lose his interest. आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोई आप कह लें अगर हमने कोई चेन बनानी है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो चेन बना रहे हैं तो हमें उन चेन्स को बनाने के लिए सिंगल चेन का दूसरी सेकंड चेन के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट रिंग का सेकंड रिंग के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अनटिल हम उन रिंग्स को कनेक्ट नहीं करते हम चेन नहीं बना सकते। आपने चेन बनाई है लेकिन रिंग को कनेक्ट नहीं किया तो फिर वो शैटर्ड की शैटर्ड ही है। आपके इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप पीस ऑफ राइटिंग्स को लिख रहे हैं तो वो पीस ऑफ आइडियाज़ हैं, पीस ऑफ थिंकिंग्स हैं। it is compulsory for us to maintain and interconnect all the piece of information that we want to connect within a one idea। हम जो एक आइडिया की तरफ उसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें वो कनेक्ट करनी भी चाहिए, सारी की सारी आपस में इंटरलिंक होनी चाहिए। फिर देन है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस क्या होता है? कंसाइज का मतलब जैसे अभी हम देखा, कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ, शॉर्ट, टू द पॉइंट। बात वही लिखें जो आपको लिखनी बनती है, मतलब कि आप सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ फोकस करें। एक बंदा बात करता है कि मैं, आप कह लें कि कंसाइज क्या होगा, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी सुने। स्टोरी ये है कि मैं इस्लामाबाद जा रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैं सुबह उठा, कसूर में रहता था और मुझे इस्लामाबाद जाना था। मैं लाहौर गया, लाहौर से फिर मुझे अचानक कोई काम याद आ गया, फिर मैंने 5 घंटे की ड्राइव की। फिर मैं फैसलाबाद से होता हुआ आप कह लें कि सरगोदा पहुंचा। पहले फैसलाबाद गया, फिर सरगोदा पहुंचा। सरगोदा से देन मुझे वहाँ एक स्टे करना पड़ा और मुझे करते कराते 3 दिन लग गए मुझे इस्लामाबाद पहुँचने में। तो बजाय आप एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाने की, आप बताएं कि मुझे जाना इस्लामाबाद था, मुझे लेकिन मुख्तलिफ काम करते हुए इस्लामाबाद 3 दिन में पहुंचना पड़ा। तो ज़रूरी नहीं आप फैसलाबाद का बताएं, सरगोदा का बताएं, आप कह लें कि फिर आप लाहौर का बताएं और फिर बताएं कि मैंने 5 घंटे कहाँ गुजारे, रात कहाँ गुजारी। आपको मतलब नो नीड टू मेंशन दैट। बट हमारा पर्पस ये है कि आपने अपनी डेस्टिनेशन को बताना है तो अपनी डेस्टिनेशन बताएं कि मुझे इस्लामाबाद जाना था, मैं डिफरेंट सिटी से होता हुआ 3 दिन में इस्लामाबाद पहुंचा। तो बजाय इसके कि आप ये बताएं मैं लाहौर पहुंचा, फिर 5 घंटे फैसलाबाद लगाए, फिर 10 घंटे सरगोदा में लगाए, आप ये डिटेल देने की, मतलब नो नीड टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। और अक्सर हमारी जो हमारी घरेलू खातून है, हमारे घरों के राज ऐसे ही बता देती है मोहल्ले में बुरे में, क्या जी हो गया, उनकी मंगनी करना आए सी, वो इंज करके चले गए, उन्होंने इंज किया, उन्होंने लेके आया। कुछ मोहल्ले की मासियाँ भी होती हैं जो बिला वजह खड़ी रहती है दरवाजे के सामने, और उसे 50 बार भी कहे ना कि आंटी अंदर आ जाए, खाला अंदर आ जाए, वो कहेगी नहीं नहीं मुझे बाजार सौदा लेने जाना है। लेकिन बिलीव में आप 1.5 घंटे बाद दोबारा देखेंगे तो आपको वहीं खड़ी नजर आएगी और वहीं गपशप लगा रही होगी। और जब फिर आप कहेंगे 1.5 घंटे बाद के अंदर आ जाए, इट्स मीन दोबारा फिर आपसे वही बात कहेगी कि नहीं 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 मुझे काम है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। इवन दो कि शी इज लिविंग नोवेयर, वो कहीं भी नहीं जा रही, लेकिन फिर भी वो आपको यही बताती है कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। इट्स मीन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो वी शुड omit all the unnecessary details। हमें unnecessary डिटेल को नहीं रखना वहां पर। हमें वो तमाम जो एक्सप्रेशंस हैं, वर्डी मतलब कि बातूनी बातें जो हैं वो हमें वहां से खत्म करनी है और हमें सिर्फ रेलिवेंट मटेरियल को ऐड करना है और अननेसेसरी रिपीटेशन से गरेज करना है। बार बार आप एक ही लफ्ज को रिपीट करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। 5 बार उसने कहा, आप 5 बार की बजाय एक ही बार कह दें तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, हमें ये ज़रूरी है कि हम
चीज़ों को कंसाइज करें, चीज़ों को कंसाइज करें, चीज़ों को ब्रीफ करें, शॉर्ट करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें वहाँ पर एक्स्ट्रा डिटेल को ऐड नहीं करना। फिर है जी रूल्स ऑफ मेकिंग प्रेसी। प्रेसी को बनाते वक्त हमें कौन से रूल्स को सामने रखना है और वो कौन से रूल्स हैं जो हमें हेल्प होंगे हमारी इस राइटिंग के दरमियान। तो सबसे पहले है कि आपको रीडिंग जो है वो आपको केयरफुल होनी चाहिए, ट्वाइस और थ्राइस इवन के रीड योर पैसेज अंटिल यू अंडरस्टैंड। आप तब तक पढ़ें जब तक आप उसे समझ नहीं लेते। आपको 2 बार पढ़ना पड़े, 3 बार पढ़ना पड़े, 5 बार पढ़ना पड़े, मतलब रीड अंटिल यू अंडरस्टैंड। आप तब तक पढ़ें जब तक आप समझते नहीं है, जब तक आपकी बात दिमाग में समझ नहीं आते। ऐसा नहीं है बस 2 बार ही पढ़ें और 3 बार ही पढ़ें, आप तब तक पढ़ते जाएं जब तक आप उसकी बातों को, मेन आइडिया को समझ ना लें। फिर अंडरलाइनिंग होती है, दूसरा रूल जो होता है। अंडरलाइनिंग क्या होती है? अंडरलाइन एंड मार्क द इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड एसेंशियल पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करें ताकि आप एट द एंड पे जाकर उसकी समरी बना सकें और अंडरलाइन किए हुए वर्ड से एक आप एक समरी बना सकें या एक पॉइंट निकाल सकें। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी, आपने उसकी जो आपने अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं उन अंडरलाइन वर्ड्स किए हुए वर्ड्स से आप आउटलाइंस बनाएं। और जब आप उनसे आउटलाइन बनाएंगे तो आउटलाइन कैसे बनाएंगे? आउटलाइन बनाएं विद द हेल्प ऑफ अंडरलाइन आइडियाज। ड्रा द आउटलाइन ऑफ योर प्रेसी। आपने जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं उन अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को आप कह लें कि वहां पर उनकी आउटलाइन बनाएं। मैं अगेन थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ। फर्स्ट रूल जो है वो रीड केयरफुली है। पढ़ने से मुराद क्या है बच्चों? मतलब कि पढ़ने से मुराद ये है कि फर्स्ट रीड द पैसेज ट्वाइस एंड थ्राइस केयरफुली टू समराइज इट। This will enable you to understand the main theme of the passage. This is a reading? No, it's never a reading. Reading means it is necessary for you to chew out the each and every word that is read by you. Just like first, what is the meaning of the first? आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो इसके नीचे अंडरलाइन करें इसे। रीड का मतलब क्या होता है, पैसेज का मतलब क्या होता है, ट्वाइस एंड थ्राइस का मतलब क्या होता है, इनमें से किसी भी वर्ड का मतलब नहीं आता तो उसे अंडरलाइन करें। और अंडरलाइन यही है हमारे पास। अगर आप इन चीज़ों को आपस में को लिंक नहीं करते, अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, तो आप नहीं पढ़ते। आफ्टर दैट अंडरलाइन पहले पढ़ना है, जब पढ़ लिया है फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन जब कर लिया है उसके बाद आपने आउटलाइंस बनानी है। आउटलाइन बनानी है उसके बाद आपने ओमिशन करनी है। ओमिशन का मतलब होता है डिलीशन, डिलीट करना। कोई भी चीज जो है उसे ओमिट करना। ओमिट ऑल द अननेसेसरी इंफॉर्मेशन और द लॉन्ग फ्रेजेस व्हिच कुड बी रिप्लेस्ड बाय वन वर्ड। आपके लिए लंबे लंबे पैसेज हैं, लंबी लंबी डिटेल्स है और उन्हें आप एक वर्ड से रिप्लेस कर दें। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैंने कहा द प्रिंसिपल असलम, असलम कॉमा, फिर मैंने लिखा द प्रिंसिपल ऑफ मौज कॉलेज, फिर कॉमा इज अ नाइस मैन। तो यहाँ पर मैंने लिखा असलम कॉमा द प्रिंसिपल ऑफ मौज कॉलेज कॉमा नाइस मैन। तो मैं इसे इतनी लंबी डिटेल असलम द प्रिंसिपल ऑफ मौज कॉलेज इज अ नाइस मैन के बजाय ही इज अ नाइस मैन क्यों नहीं कह देता, या मैं असलम इज अ नाइस मैन क्यों नहीं कह देता? द प्रिंसिपल ऑफ मौज कॉलेज की हमें इसका टाइटल की जरूरत नहीं है, हमें तो बस असलम की जरूरत है। हमें असलम की जरूरत है, असलम की प्रोफेशन की जरूरत नहीं है हमें। अगर असलम के प्रोफेशन की जरूरत है तो फिर आप कहें द प्रिंसिपल इज अ नाइस मैन। आप फिर भी मौज कॉलेज को या पंजाब कॉलेज को या असलम को वहाँ पर ओमिट कर सकते हैं। ओमिट का मतलब डिलीट करना होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है उसे निकाल दें। All the adjectives and all the adverbs can also be omitted in order to make a good pressy। जितने भी एडजेक्टिव हैं वो सारे निकाल दें, खत्म कर दें, एडवर्ब सारे डिलीट कर दें वहां से। उनके लिए कोई एक सिंपल सा वर्ड लिखें, ठीक है। फिर डोंट ओमिट, डोंट ओमिट मतलब कि ओमिट नहीं करना। क्या नहीं करना? जो ओरिजिनल बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको आपने ओमिट नहीं करना। आपने ओमिट गैर जरूरी मालूमात को करना है, जरूरी मालूमात को ओमिट नहीं करना। While making a précis, the writer should never omit the important points and the ideas which are essential to be described। आपने important ideas को omit नहीं करना। जो अननेसेसरी आइडियाज हैं उनको आपने ओमिट करना है, जो इंपॉर्टेंट हैं या नेसेसरी हैं उनको ओमिट नहीं करना। फिर साइज क्या होना चाहिए? साइज ये आपका 1/3 होना चाहिए। पैसेज के वर्ड्स को काउंट कर लें, अगर 100 है तो वो 33 के वर्ड के राउंड अबाउट होना चाहिए। 2-3 वर्ड कम आ जाए, 2-3 वर्ड ज्यादा आ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच होनी चाहिए, वहां पर फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब कि डायरेक्ट स्पीच नहीं होनी चाहिए। वो यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही सेड दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू फिर बात करें, आप ऐसी बातें नहीं करनी। आपने हमेशा उसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल नहीं करना।
डायरेक्ट स्पीच वो होती है जहां पर हम आप कह लें कि कोटेशंस लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, इनको रीडर को कंफ्यूज नहीं करना। आप डायरेक्ट स्पीच में बात करें, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में बात करें ताकि उसे परेशानी ना हो, ठीक है। इफ देयर इज अ डायरेक्ट पैसेज इन द स्पीच, इट शुड बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अगर वहां पर पैसेज के अंदर इनडायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, तो आप उसे कन्वर्ट करके लिखें इनडायरेक्ट स्पीच में। फिर टेंस हमेशा कोशिश करें कि आप पास्ट टेंस इस्तेमाल करें, सेकंड पर्सन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, फर्स्ट पर्सन का भी बहुत कम करें। अगर बहुत जरूरत पड़ी है तो वी का वर्ड इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज जस्ट थर्ड पर्सन इस्तेमाल करें। आपकी राइटिंग जो है थर्ड पर्सन में ही होनी चाहिए। फिर ओन वर्ड्स, आपकी राइटिंग अगर आपके ओन वर्ड्स में नहीं है तो ये आपने चीटिंग की है। तो ओरिजिनल पैसेज से आपने वर्ड्स नहीं उठाने, सिंगल वर्ड भी आपने बारो नहीं करना, जस्ट वहां से आपने आइडिया लेना है उनसे, आपने क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, उस इंफॉर्मेशन को अपने अल्फाज में आपको डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद है कि अगर प्रेसी के अंदर डायलॉग्स हैं तो उस डायलॉग्स को आपको डिलीट करना है, ठीक है। उसे आप डायलॉग की फॉर्म को खत्म करके नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेके आना है। फिर ऑब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। फिर आप कह लें कि 1 पैराग्राफ होना चाहिए, वहां पर प्रेसी के 3 पैराग्राफ हैं या 5 पैराग्राफ हैं, लेकिन जब आप उसे आंसर्स के तौर पर प्रेसी बनाएंगे उसकी, तो आप 1 पैराग्राफ ही बनाएंगे, वहां पर 2 पैराग्राफ नहीं बनाएंगे, एक ही पैराग्राफ बनाएंगे। उस पैराग्राफ को बनाने से पहले रफ ड्राफ्ट बना लें। आफ्टर ओमिटिंग ऑल द अननेसेसरी डिटेल्स, द राइटर शुड प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट टू फाइनलाइज इट। पहले रफ ड्राफ्ट बनाएं, एक रफ स्केच सा बनाएं, उसे पढ़ें, डिटेल देखें, उसमें से कोई चीजें आपको एक्स्ट्रा लगती हैं फिर निकाल दें, कोई आप देखें क्योंकि आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी है उसे दोबारा उसमें ऐड कर दें, और उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट बनाएं। पहले रफ बनाएं ताकि कोई गलती ना रह जाए, अगर गलती हुई है तो दोबारा उसका फाइनलाइज कर दें, ठीक है। इसी तरह एक प्रैक्टिस के तौर पर ये पैसेज दिया गया है, इसके वर्ड ऑलमोस्ट आप कह लें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, क्या काउंट करने हैं, इसे हम ले लेते हैं। कैसे बताएगा हमें ये कितने वर्ड्स हैं जी। ये ऑलमोस्ट आपके पास 198 वर्ड हैं, इट्स मीन 200 वर्ड हमारे पास हैं। ये जो 200 वर्ड है तो इसका 200 का क्या बनेगा, ऑलमोस्ट 60 और 70 और 65 के लगभग आपके वर्ड्स आने चाहिए। 65 इसे कन्वर्ट करना है। ये एक पैसेज है, इसका आप कहें लाइफ ऑफ एक्शन एंड डेंजर मॉडरेट्स द ड्रेड ऑफ लाइफ, इट नॉट ओनली गिव अस फॉर्टिट्यूड टू बियर पेन बट टीचेस अस एट एवरी स्टेप द प्रीकेरियस टेन्योर। अब देखें, टेन्योर और प्रीकेरियस दो एडजेक्टिव यहाँ पर, ऑन विच वी होल्ड आर प्रेजेंट बीइंग, ठीक है। अब इतने बड़ा सेंटेंस है, इट्स मीन आपको 3 लाइनों को एक लाइन में कन्वर्ट करना है। अगर आप हर 3 लाइन्स को 1 लाइन्स में, हर 3 सेंटेंस को 1 सेंटेंस में कन्वर्ट करते जाएंगे तो आपकी प्रेसी बनती जाएगी। इसका आंसर यहाँ पर बनाया हुआ है, नीचे देखें। क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, व्हाट टाइप ऑफ द पीपल आर अफ्रेड ऑफ डेथ एंड व्हाई, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ द फियर ऑफ डेथ, what idea do you form about Dr. Johnson from this passage, explain the meaning of the word written in bold types, make a précis of the passage। ये आप कह लें कि ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन है, इसके आंसर्स देने हैं हमें। सोल्यूशन क्या है, सूटेबल टाइटल फियर इफ डेथ, ठीक है। और फियर ऑफ डेथ के तौर पर आप कह सकते हैं इसे, इफ नहीं लगाना तो ऑफ लगा दें। Fear of death, people who spend much time sitting and studying are the most afraid of death because they lead a peaceful life and want to no change, ठीक है। ये क्वेश्चंस के आंसर भी दिए गए हैं और इसकी प्रेसी बनाई गई है। ये देखें ऑलमोस्ट कितने वर्ड्स बनते हैं हमारे पास, इसे भी काउंट करते हैं। ये हमारे पास कितने वर्ड बने हैं जो प्रेसी बनाई गई है। ये इसका आंसर्स है ऑलमोस्ट 63 वर्ड। मैंने कहा था 65 वर्ड होने चाहिए, तो 63 वर्ड उसने कन्वर्ट करके दे दिए हमें। तो इट्स मीन ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें, आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, और ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बनाई है। नेक्स्ट आप इसकी एग्जाम्पल एक पैसेज की बनाएंगे, इसी पैसेज को बनाएंगे, लेकिन सेम वर्ड्स नहीं आने चाहिए जो मैंने पुट किए हैं यहाँ पर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।